It's a introductory class on MT2 linear algebra. Friends, you will enjoy this class with me. So we will discuss about the meaning of linear algebra. Linear algebra includes linear equations, linear maps, vector spaces and matrices. Linear algebra will be used in future for the MT6, which is abstract algebra, and also it finds its application in linear programming MT12 as well as coding theory. So you have learned in your class 12th about the sets, functions and equivalence relations, so we will not waste our time on that. We will directly jump to the fields which might be worrying you very much. So examples of fields are rational numbers, real numbers and complex numbers, etc. So how can we identify whether a set is a field or not? So in a field there are two binary operators, addition and multiplication sign, means plus and into. So it has got total 9 properties for a field. First 4 are additive, next 4 are multiplicative, and the ninth one is the combination of both additive and multiplicative. So the first property is for additive, that is plus is associative. The name indicates bracket a plus b plus c is equal to a plus bracket b plus c. Next property is additive identity. So additive identity is 0. It means that if you will add 0 to any number which is in the field, it will yield the same result. Example, a plus 0 is equal to 0 plus a is equal to a. Now next third property is the inverse. Additive inverse means you add any number, not any number, the inverse added with the number will result in identity, that is a plus b is equal to 0. It means b has the form of minus a, and both a and its inverse should be in the field. Fourth property is plus is commutative. Simple, a plus b is equal to b plus a. Now we are entering into the multiplicative properties. Fifth one, multiplication is associative. Same you can see here. Now the next 6 property is multiplicative identity, that is a into multiplicative identity is equal to multiplicative identity into a is equal to the a. So 7th property is the multiplicative inverse, in which if the inverse of a is multiplied with it, it will result in identity. Okay, a into b equal to e equal to b into a, simple. 8th one is multiplication is commutative, a into b equal to b into a, and the 9th one is the combination of both. If you have heard that 8 properties, then you will appreciate the 9th one also, that is into is distributive over addition. A plus b into c is equal to a into b plus b into c. So I have told you about all the 9 properties. अगर आपको कोई भी सेट को पता करना है कि वो फील्ड है या नहीं है, तो आप जो है ये 9 पैरामीटर्स से चेक करेंगे. अगर ये 9 पैरामीटर्स मैच कर रहे हैं, मतलब वो सेट जो है फील्ड है, अदरवाइज वो फील्ड नहीं है. वी विल ऑल्सो टेक एग्जांपल्स. नाउ लेट्स डिस्कस अ थ्योरम. ओके स्टूडेंट्स, अब हम एक थ्योरम देखते हैं. तो थ्योरम सेज अगर f कोई भी फील्ड है, देन एनी एलिमेंट विच बिलोंग्स टू दिस फील्ड, अगर हम a इंटू 0 करेंगे देन ए विल रिजल्ट इन 0. सो इट इज द सिंपल. आप देख सकते हैं अगर a कोई भी एलिमेंट है इस फील्ड का, अगर इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आंसर 0 आएगा. ठीक है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. वी विल डिस्कस अबाउट अ इंटीगर मॉड्यूलो.
लेट्स टेक एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं Z3 इक्वल टू 0, 1 और 2, और इस इंटीग्रल मॉड्यूल में जो है दो ऑपरेटर है, क्या है, एक प्लस है और एक माइनस है। इस प्लस का मतलब क्या है, इट मीन्स रिमाइंडर लेफ्ट व्हेन x plus y is divided by 3, this 3, and it means remainder left when, sorry, this will be into when x into y divided by 3. ओके, तो पॉइंट क्लियर। नाउ विल प्रूफ, हम प्रूफ करेंगे कि ये फील्ड कैसे है। सो यू कैन सी नाउ दिस satisfy the property of field associative property satisfy कर रहा है ये, बोथ एडिशन का और मल्टीप्लिकेशन का। कैन यू रिकॉग्नाइज दिस? हाँ, यू राइट। सो ये कम्युनिटी भी सेटिस्फाई कर रहा है, बोथ प्लस का और इनटू का, क्योंकि अगर हम कोई भी एलिमेंट लेते हैं इसमें से, सपोज 0 ले रहे हैं और प्लस 1 2, देन इट इज इक्वल टू 0 प्लस 1 प्लस 2। ओके, एंड सेम इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इट इज़ वेरी इजी, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है मुझे। एंड सेम अगर हम कम्युनिटिव लेते हैं, सपोज 0 प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस 0, और 0 इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू 0। सो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। और नाउ हम देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव एंड इनवर्स। इनवर्स ऑफ 1 एंड 2 ऑफ 1 एंड 2 क्या होगा, आप बताइए। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, अगर कोई भी नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करे तो वो आइडेंटिटी देगा, और अपना यहाँ पे आइडेंटिटी क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी 0, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1। ठीक है, इन द सेम वे अगर 1 इंटू सम नंबर, सपोज x, क्या बराबर होना चाहिए, इसका आइडेंटिटी बराबर होना चाहिए। ये कब ट्रू होगा, आप थोड़ा सोचिए कब ट्रू होगा। यस, अगर यहाँ पे x 1 हुआ, ओके, एंड सेम 2 का क्या होगा, 2 इंटू एक्स इक्वल टू 1, ये कब सेटिस्फाई होगा बताइए। हाँ, यस, जब यहाँ पे 2 होगा। कब 2 होगा, देखिए 2 इंटू 2, ओके, इक्वल टू 4। नाउ व्हाट इज द मीनिंग मॉड्यूलो बाय 3, रिमाइंडर लेफ्ट, तो 3 1 जा 3, रिमाइंडर इज 1। सो आपका इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, और ये 1 क्या है, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो इन द सेम वे जो है इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा 1 2 का, यस 1 और 2 ही होगा। ठीक है, नाउ एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, 0 1 2 का, 0 1 2, बताइए ऐसा क्या मैं इस 0 एलिमेंट से ऐड करूंगा कि मेरा आंसर जो है एडिटिव आइडेंटिटी 0 आएगा। यस, वी हैव नो ऑप्शन लेफ्ट, ओनली 0। अगेन, ऐसा क्या मैं ऐड करता हूं इस 1 से कि अपना आंसर 0 आएगा, बताइए।
आप बता नहीं पा रहे हैं क्या आएगा? 2 आएगा। कैसे 2 आएगा? 1 + 2 = 3। नाउ रिमाइंडर लेफ्ट व्हेन x + y डिवाइडेड बाई 3। सो 3 से डिवाइड करते हैं, 1 करेंगे, या 0 आएगा। सो दिस 0। नो ऐसा क्या मैं ऐड करता हूँ इस 2 से कि मेरा = 0 आएगा? क्या आएगा? यस 1। सेम 2 + 1 3 3 0। सो अपना ये एडिटिव इन्वर्स हो गया, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया। ठीक है। नाउ यू कैन इजिली वेरीफाई दैट multiplication is distributive over addition. That is, multiplication is easily distributive over addition. कोई ज़्यादा समझने में प्रॉब्लम आ रही है? इसको नहीं आ रही है? सो Z3 क्या है? अपना फील्ड है। ये हमने प्रूफ कर दिया। और ये फाइनाइट फील्ड है। क्यों? क्योंकि वी हैव हियर 3 एलिमेंट्स, 1 2 3, 3 एलिमेंट्स। ओके। सो आपने देखा कि कैसे फील्ड है। पहले हमने क्या प्रूफ किया? पहले हमने दिखाया कि ये जो है बोथ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में क्या है, ये एसोसिएटिव है। देन कम्युनिटेटिव भी है ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में बोथ। एंड देन इसके आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और इसका मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स भी है। 1 2 का क्या है? 1 2 ही है। एडिटिव इन्वर्स क्या है? 0 1 2 का 0 2 1 है। और ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी है। सो ऑल द 9 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई इन दिस वे। Z3 इज अ फील्ड। सो नाउ अब हम डिस्कस करेंगे ZP, क्योंकि आपको मैंने एक एग्जांपल दिया था Z3 का, इंटीग्रस मॉड्यूलो 3। नाउ इंटीग्रस मॉड्यूलो P, वेयर P क्या है? P इज अ प्राइम नंबर। ओके। नाउ अब हम जो है केस को जनरलाइज करने वाले हैं। अगर Z3 की जगह Z5 हुआ, Z7 हुआ, Z11 हुआ तो क्या कर देंगे? कुछ नहीं करना है। सेम अगर ये ZP है तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी P होंगे। कैसे होंगे? 0 1 2 P - 1। ओके। और इसके क्या ऑपरेशन होगा? ऑपरेटर क्या होंगे? इनटू होंगे, प्लस होंगे और हैं। ठीक है। इसका मतलब मैंने आपको बताया था इसके पहले। अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ आप वीडियो को बैक करिए और एक बार अच्छे से उसको देखिए। नाउ तो इसको हम बोलते हैं प्राइम फील्ड। कर देगा। नाउ हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक होता क्या है। तो आज आपका जो कंफ्यूजन है क्लियर कर देता हूँ मैं। कैरेक्टरिस्टिक, तो व्हाट डू आपको क्या समझ आता है इस कैरेक्टरिस्टिक के बारे में? तो जैसे कोई भी चीज़ें होती है उसके हम कैरेक्टर बताते हैं, तो वैसे ही सेम अपना जो मैथमेटिकल थ्योरी है, जो अपना लीनियर अलजेब्रा है, उसके जो सेट होते हैं, सेट के भी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है। इसका मतलब क्या होता है? सपोज कोई भी फील्ड है F and you take any number. Suppose there exists n belonging to n, okay, such that NA is equal to 0 for all A belonging to F. Then least such positive integer n is called this characteristic। ठीक है। तो सब मतलब क्या हुआ? अगर कोई भी फील्ड F ले लो आप, और उसका मतलब आप फील्ड F ले लीजिए और n बिलोंगिंग टू n, कोई भी नेचुरल नंबर ले लीजिए n। तो अगर ऐसा n जिसको मैं a से मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर रिजल्ट 0 आता है, तो ऐसा n एक नहीं होगा, ऐसा n कई होगा। मान लो सपोज 5n है, देन लीस्ट सच पॉजिटिव इंटीजर, सपोज ये n जो है
1 2 3 4 या 5 है। इसमें से लिस्ट कौन सा, जो लिस्ट जो है 1 है, तो जो ये जो 1 है इसको हम बोलेंगे कि ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है। अंडरस्टूड? सिंपल है, ठीक है, ठीक है। और अगर ऐसा कोई इंटीजर एग्जिस्ट ही ना करता हो जिसको मल्टीप्लाई करने से अपना फील्ड का इक्वल 0 आएगा, देन इसका कैरेक्टरिस्टिक हम बोलेंगे कि 0 है। ओके, सो एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल्स, लेट्स टेक रैशनल नंबर। तो सपोज आप फील्ड रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर से आप कोई भी नंबर ले लीजिए, सपोज आप 1/2 लीजिए। तो इस 1/2 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं जिसका रिजल्ट 0 आ जाए? ऐसा कोई इंटीजर है? नहीं, ऐसा कोई x नहीं, ऐसा कोई भी इंटीजर नहीं है। सो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? 0 होगा। यस, नाउ टेक रियल नंबर फील्ड। सपोज रियल नंबर 5 लो आप, तो ऐसा कुछ इंटू कर सकता हूँ मैं कि रिजल्ट 0 मेरा? नहीं। सो अगेन कैरेक्टरिस्टिक विल बी 0। ओके, नाउ ZP का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, ये मैं आपसे पूछता हूँ। या बताइए मुझे ZP का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? सो इसका कैरेक्टरिस्टिक P ही होगा। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ इंटीजर मॉड्यूलो P विल बी P ऑफ अ प्राइम फील्ड विल बी P। कैसे P होगा? क्योंकि आप कोई भी x लीजिए बिलोंगिंग टू ZP, ओके, देन इस x में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं जिससे मेरा रिजल्ट 0 आएगा? ठीक है, सपोज इससे मैं P मल्टीप्लाई करता हूं, तो रिजल्ट 0 आ रहा है। क्यों आ रहा है रिजल्ट? क्योंकि P इंटू एक्स, क्योंकि ये इंटर मॉड्यूलो है, तो P से मल्टीप्लाई करता हूँ, Px 0। ठीक है, ठीक है, मतलब ये लेते हैं हम। नाउ सपोज कोई और y लेते हैं। सपोज दैट y इज लेस देन P, देन xy कर रहे हैं, इसको हम डिवाइड करेंगे। क्योंकि ये लेस देन P है, मतलब y को आपने लिया है। नाउ सपोज आप कोई भी एलिमेंट y लेते हैं, दिस y इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन P। सो अब जो है, अगर हम इस y को जो है इस ZP के एलिमेंट से इंटू करते हैं, सपोज ZP में जो है 1 भी आ सकता है, क्योंकि ZP का क्या क्या एलिमेंट होंगे? 0 1 डॉट डॉट P माइनस 1। ओके, तो 1 लिया मैंने, तो ये 1 क्या आएगा? ये 1 जो y, ये y ही आएगा, क्योंकि y जो है P से छोटा है। तो अगर कैरेक्टरिस्टिक क्या है? मॉड्यूलो। व्हाट इज मॉड्यूलो? मॉड्यूलो आपको समझा सही से कि नहीं समझा? सपोज अगर मॉड्यूलो मुझे x प्लस वाई मॉड्यूलो 5 निकालना है, ओके, अगर मेरा x जो है 1 है, y जो है 2 है, तो 3 mod 5, 3 mod 5 जो है 3 ही आएगा। जब तक नंबर जो है, जब तक ये x प्लस वाई जो है ग्रेटर देन या इक्वल टू 5 नहीं है, तब तक इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इन द सेम वे जो y है ये लेस देन p है, तो आंसर जो है y बाई p, क्योंकि ये y p से लेस है, तो इसका रिमाइंडर y ही आएगा। ठीक है, तो हमको यहाँ पर अपना रिजल्ट नहीं मिला, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या होता है? जो इक्वल टू 0। तो p जो है लीस्ट है, मतलब p इज़ द लीस्ट इंटीजर विच कैन बी मल्टीप्लाइड विद द एलिमेंट ऑफ ZP, जो हमको 0 आंसर दे। मतलब p जो है लेस्ट इंटीजर है जो हमको 0 दे। बाकी p से भी ज़्यादा है, p से ही बड़े बड़े नंबर है। सपोज p से कोई बड़ा नंबर है, x है, सॉरी p से बड़ा नंबर z है, z इंटू एक्स इक्वल टू 0 हो रहा है, पर ये जो z है ये p से बड़ा है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगा। सो अपना कैरेक्टरिस्टिक जो प्राइम फील्ड का है वो दिस p ही रहेगा। ओके,
सो हेयर वी हैव डिस्कस्ड, हमने डिस्कस कर लिया है अपने पूरे फील्ड का चैप्टर। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको लगता है कि मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकता हूँ, तो यू मस्ट गो फॉर द एडवांस्ड कोर्स इन विच आपको अच्छा मार्क्स मिल सके एग्ज़ाम में, और आप जो अपने असाइनमेंट खुद बना सके बिना किसी असाइनमेंट एक्सपर्ट के हेल्प के। थैंक्स।